Hey everyone, it's me Kia again and welcome back to another swatch and review video जिसके बारे में तुम्हें thumbnail और title से पता पड़ ही गया होगा and I hope you are excited about it just like me because I am so very pumped up to share these polishes with you guys. And the brand that I'm gonna be talking about today is not new to our channel. In fact, it's the most loved brand on my channel and it is none other than मार्स कॉस्मेटिक्स और उनकी कॉस्मिक ह्यूज नेल पॉलिशेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. आई बिलीव दिस इज द थर्ड वीडियो फॉर दिस कॉस्मिक ह्यूज नेल पेंट रेंज फ्रॉम मार्स कॉस्मेटिक्स. बाकी दो पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो या तो मैं आई बटन में ऊपर डाल दूंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. यू कैन गो अहेड चेक देम आउट. मैंने उसमें इन टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 शेड्स के बारे में बात करी है. स्वॉचेस भी दिखाए हैं, राइट? बट कमिंग टू टूडेज वीडियो, तो अगर स्वॉचेस ही देखने तो अगेन मैं टाइम स्टैम्प यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी. यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू इट, सी द स्वॉचेस, वॉच माई रिव्यू एंड देन मेक अप योर माइंड अबाउट दीज पॉलिशेस. बट हियर इज व्हाट हैपेंड. One of you, to be specific, Rhythm11, that's the user handle, she told me 7 days ago that Mars added new shades in their cosmic hues range, and I was like, what? And immediately I told my mom. We went onto their website. Actually, we went onto Nykaa and we searched, and of course there were new shades and those were gorgeous shades. So I bought 10 shades from their newest edition और उसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं. तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि मार्स ने कौन से नए शेड्स ऐड किए हैं, मैंने कौन से पिक किए हैं, उनके बारे में मेरा क्या ख्याल है, कैसे दिखते हैं, मेरे क्या रिव्यूज हैं, क्या फेवरेट्स हैं, वेदर आई विल रिकमेंड देम और नॉट, देन आई थिंक यू नो व्हाट यू हैव टू डू. Just keep on watching the video. Starting with the first polish, which is 63 Solara. I really don't like the names on the new shades for some reason. But coming to this polish, this is like a very faded, bronzy, metallic-y polish with similar sheen running throughout it, along with micro brassy and holographic glitters mixed into it. Now, लगाने में ये polish काफी smooth है, flowy है, self-leveling है. यहाँ मैं 2 coats लगा के दिखा रही हूँ and you can see कि I achieve like decent opacity. But मुझे ऐसा लगता है किसी polish के ऊपर layer करके लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छी खासी opacity मिल जाएगी. ना इसके ड्राइंग टाइम की बात करूँ तो ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है इफ़ यू वर्क इन थिन कोट्स, और ये काफ़ी ग्रिटी भी ड्राई नहीं होती है. सो अ गुड लेयर ऑफ थिक ग्लॉसी टॉप कोट विल स्मूथ एवरीथिंग आउट. एंड हियर इट इज अंडर द मोबाइल लाइट फॉर दैट holographic effect which is pretty subtle. Next up in the line is 64 Halo, which is like straight up a purple scattered holographic topper. Now इसमें बहुत ही slightly purple tinted base में holographic glitters हैं along with silver glitters as well, और मुझे लगता है silver glitters ज़्यादा हैं as compared to the holographic ones. Now as I said it's a topper, so इससे opacity तो नहीं मिलेगी, but क्योंकि इसमें slightly purple tinted base है तो I won't suggest कि आप किसी और base color के ऊपर लगा के इसे use करो. Purple के साथ लगाओगे तो you can use it to its full potential. ये बहुत जल्दी से dry भी हो जाती है, काफ़ी smooth flowy सेल्फ लेवलिंग है लगाने में और ज़्यादा ग्रिटी ड्राई नहीं होती है. मे बी यू कैन अप्लाई लाइक 2 thick coat of a glossy top coat to smooth everything out, and of course here it is under the mobile light and that holographic effect is absolutely stunning. Third one in the lineup is 65 Radiara, which is again a purple glitter shimmer polish, but this time on a cooler side. So again, it has like a very slightly cool toned purple tinted base along with silver micro glitter shimmer running throughout it, which is jam packed. एक थोड़ा सा blackish purple look मिल जाता है, but it looks absolutely stunning. लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, काफ़ी स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवलिंग है. जो ग्लिटर्स हैं काफ़ी फ्लैट रहते हैं नेल्स पे, तो ग्रिटी भी ड्राई नहीं होती है. ऑफ कोर्स इसे ओपेसिटी नहीं मिलेगी. किसी पर्पल पॉलिश के ऊपर इसको लेयर करके लगाने में फुल पोटेंशियल यूज होगा इस पॉलिश का. एंड या व्हाट एल्स आई कैन से, इट हैज ब्यूटीफुल शिमर. इसमें कोई भी होलोग्राफिक शीन नहीं है. Fourth up in the collection is 66 Celestia, which is a very unique nail polish to my collection. It's a beautiful creamish grayish polish with slight
purplish undertones in a metallic finish along with gold to green shimmer running throughout it, जो कि लाइट हिट करती है तो उस हिसाब से चेंज होता है. Now I was not expecting the kind of opacity I got with this light shade. मतलब 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, I achieve like 90% opacity, पर मुझे ऐसा लगता है किसी क्रीम या वाइट पॉलिश के ऊपर लेयर करके पॉलिश ज्यादा अच्छी दिखेगी. इट्स अ ब्यूटिफुल वेडिंग पॉलिश एज वेल, क्योंकि ब्राइड्स को आजकल ऐसे पेस्टली क्रीमी लहंगे बहुत अच्छे लग रहे हैं. इनफैक्ट यू कैन वियर दिस एज अ वेडिंग गेस्ट एज वेल. इट्स अ ब्यूटिफुल पॉलिश, बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती है, काफी स्मूथ है, फ्लोई है, क्रीमी है लगाने में, एंड आई जस्ट लव 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 दिस शेड. Next up in the line is 67 Lunara. I don't know why they added like a creme polish in the sequence of glitters and shimmers, but here it is. I bought it because I wanted to continue with the sequence, and this is like a medium toned ka regular brown creme polish. I have nothing much to say about this one. 2 coats में you achieve like decent opacity. Formula थोड़ा सा liquidy और sheer सा है, but as I said आप build up कर सकते हो क्योंकि polishes बहुत जल्दी dry हो जाती है. क्योंकि ये creme polishes में कोई glitter नहीं है तो ये ज़्यादा time भी नहीं लेती dry होने में. काफ़ी smooth, self leveling और flowy सा formula है. इसका opacity as I said 2 से 3 coats तक build up करनी पड़ेगी. But yeah, if you are looking for your regular brown color का polish in affordable side, you can check this one out. Moving forward, I have 68 Vela, and this polish has a lot going on with it because this is like a very beautiful cool tone purpley pastely metallic-y pearlized finish nail polish with silver shimmer running throughout it, and it looks absolutely gorgeous on your nails. You can see here in the swatches, यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, and I think I achieved decent opacity somewhere around 90-95%, which is so good. Now क्योंकि थोड़ी सी pearlized finish polish है तो brush strokes का ध्यान रखना पड़ेगा, otherwise लगाने में बहुत ही smooth है, flowy है, self leveling है. किसी पर्पली सिमिलर कलर के क्रेम बेस पे लेयर करके this polish is just gonna shine. Moving forward, I have 69 Milky. Okay, I don't understand why they named this polish Milky, but moving forward, this is like a beautiful warm toned silver metallic chrome polish. यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, and you can see I achieved kind of full opacity क्योंकि chrome polish अपने आप में थोड़ी सी opaque होती हैं. लगाने में बहुत ही smooth थी, flowy सी थी, self leveling थी और काफ़ी हद तक opaque भी थी. हाँ, क्योंकि ये metallic और chromy polish है तो brush strokes का ध्यान तो रखना पड़ेगा क्योंकि सूखने के साथ साथ इतने भी नहीं चले जाते, दिखते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट कोट तो आप ओपेसिटी के लिए लगाओ और सेकंड कोट में ब्रश स्ट्रोक सीधे कर लो, और जितने थिन कोट्स में काम करोगे उतना इजी होगा ब्रश स्ट्रोक्स को सीधा करना. Next up, I have 70 Astro Dew. Okay, I like this name. Now, this is like a green counterpart of 68 Vela. It is a beautiful, pastely, dusty, cool-toned green shade in that pearly, metallic-y finish with silver sheen running throughout it. यहाँ भी 2 कोट्स में लगा के दिखा रही हूँ, and I think I achieve like similar kind of opacity, 90-95%. इसको भी लेयर करके बहुत अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है. If you are a fan of green, your outfit screams green, you can pair it up with this polish and your nails will look absolutely stunning. Polish बहुत ही smooth है, flowy है, self leveling है लगाने में और बहुत जल्दी से dry भी हो जाती है. Second last polish that I have is 71 Chrome, which is like a reddy, pinky, slightly purplish undertones के साथ metallic chromy polish with that silver sheen running throughout it, and I can also see like specks of micro silver glitters into it. Now again, as usual, मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, and I think I achieve like decent opacity. वो जो silver glitters है ना, micro glitters, वो इतने ज़्यादा निकल के नहीं आते हैं because they are very sparse, but जो sheen है वो बहुत खूबसूरत लगती है. Again, metallic की क्रोमी है तो ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा. काफ़ी जल्दी से पॉलिश ड्राई हो जाती है. थिन कोट्स में काम करोगे तो जल्दी ड्राई भी होगी और ब्रश स्ट्रोक्स भी सीधे हो जाएंगे. अदरवाइज काफ़ी स्मूथ, फ्लोई, सेल्फ लेवलिंग फॉर्मूला है. Last up that I have is 72 Bronzia, which is like a deeper brown shade in a metallic-y pearly finish along with silver sheen running throughout it with micro holographic glitters mixed into it, which are very sparse.
नाउ क्योंकि इतनी डार्क पॉलिश है, मैं अच्छी खासी ओपेसिटी एक्सपेक्ट कर रही थी, बट मुझे ऐसा लगता है 2 से 3 कोट्स तक भी बिल्डअप करना पड़ सकता है, विच वॉज अ बमर, बट अदरवाइज लाइक अ ब्यूटिफुल पॉलिश इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इन ब्राउनिश टोन्स दिस पार्टी वेडिंग सीजन। लगाने में काफी स्मूथ है, फ्लोई है, सेल्फ लेवलिंग है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि परलाइज साइड पे जाती है तो सूखने के बाद जाएंगे नहीं। एंड हियर इट इज अंडर द मोबाइल लाइटिंग एंड यू कैन सी कि ज्यादा कुछ होलोग्राफिक इफेक्ट है नहीं क्योंकि ग्लिटर्स काफी स्पार्स थे। All right, you people. So you saw the swatches of 10 new shades from Mars का Cosmic Hues Nail Paint range. हम और बात करेंगे इनके बारे में because I have a few things to say about these polishes. मोस्टली अच्छी ही है बट टेक्निकल डिटेल्स पहले सॉर्ट कर लेते हैं। तो ईच ऑफ दीज पॉलिशेस दे रिटेल फॉर 99 रुपीज एंड यू गेट 10 ml ऑफ प्रोडक्ट। सो अच्छी खासी अफोर्डेबल पॉलिशेस है और मैंने इन्हें नायका से लिया था, तो मैं स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, यू कैन क्लिक ऑन टू इट एंड बाय इट फॉर योरसेल्फ। ब्रशेस की बात कर लेते हैं तो अगर तुमने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि इनमें कैसे ब्रशेस आते हैं और उस बारे में मेरा क्या ख्याल है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रश हैं, वाइड फ्लैट ब्रश है विद अ वेरी स्लाइट कर्व टू द एज। ऐसा लगता है कि स्क्वायर ब्रश को ऐसे साइड से राउंड कर दिया गया हो, तो आप थोड़ा बहुत ऐसे मैनिपुलेट करके ब्रशेस को ना अच्छा खासा क्यूटिकल के अराउंड एक अच्छी क्लीन कट लाइन ला सकते हो। तो मेरे हिसाब से आई वुड गिव दीज ब्रशेस अगेन अ 1.5 थम्स अप। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं पॉलिशेस के बारे में, प्लीज सुन लेना आखिरी तक बिकॉज आई एम शेयरिंग सम इनसाइड डिटेल्स क्योंकि मैंने पॉलिशेस को यूज किया तो आई कैन टेल यू लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। सो फर्स्टली आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दीज न्यू एडिशंस इन मार्स का कॉस्मिक ह्यूज रेंज। दे आर ब्यूटिफुल शेड्स एंड व्हेन इंडियन मार्केट में ऐसी चीजें आ रही है ना, इतने अच्छे अच्छे टेक्सचर्स, कलर्स, फिनिशेस, सो इट्स मेकिंग मी रियली हैप्पी। सो दीज पॉलिशेस आर लाइक 90% किया अप्रूव्ड क्योंकि अभी क्या वेडिंग सीजन भी चल रहा है, तो ये पॉलिशेस उस हिसाब से बहुत खूबसूरत रहेंगी क्योंकि इतने सारे शेड्स में ना सबको अपने लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा हर एक फंक्शन के लिए। प्लस दे आर सो अफोर्डेबल ऑल्सो, राइट? सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेडिंग अप्रोप्रिएट फॉर योर नेल्स, गो फॉर दीज पॉलिशेस, यू वोंट रिग्रेट देम एट ऑल। जो 10% मैंने काटा है ना वो सिर्फ इसलिए कि मुझे ऐसा लगा पॉलिशेस में ना थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी है फॉर्मूला को लेकर। कुछ एक पॉलिशेस तो ओ माय गॉड तुम्हें पता पड़ेगा बिकॉज आई हैव 2 favorites to share with you this time and these are like highly recommended from my side. So बहुत ही अच्छी पॉलिशेस में और थोड़ी सी मुझे मैह टाइप की लगी, तो वो थोड़ी सी जो इनकंसिस्टेंसी है फॉर्मूला में उसकी वजह से मैंने 10% काटा है क्योंकि जब तक आप यूज नहीं कर लो आपको पता नहीं पड़ता कि पर्टिकुलर पॉलिश या पर्टिकुलर शेड कैसा टर्न आउट होगा। सो या दैट्स अ लिटिल प्रॉब्लम बट अदरवाइज दे आर 90% किया अप्रूव्ड, especially if you're looking for something this wedding season. Yes, now it's time for favorites। जैसा कि मैंने कहा 2 favorites है मेरे पास, बट इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने favorites बताऊं, I would like to do a special mention for the polish 72 Bronzia. Now this is like an affordable dupe for Nykaa's festive collection की polish cocktail roast. If you have seen that polish on my channel, I think मैंने उसका full hand swatch भी डाला हुआ है, अगर नहीं देखा है तो यहाँ मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, you can check that out. And this is like an affordable dupe। अगर वो polish out of stock हो गई है तो मैं नहीं मिल रही है या too expensive for you, we can check this one out। अब बारी आती है मेरे favorites की, तो first favorite is 66 Celestia। Oh my god, it's an absolute gorgeous polish you guys। मुझे पहले से लगा था पैकेजिंग देख के कि pearlized white finish polish होगी, बट नहीं, it has a lot going on। It's like a purpley grayish white kind of polish with goldeny greenish shimmer running throughout it and it's a beautiful almost 2 कोटर, बट मैं किसी व्हाइट पॉलिश के ऊपर भी से लेयर करके लगा सकती हूँ। सो इफ यू रियली लाइक सच पेस्टली वाइब्स जो कि आजकल काफी ट्रेंड में है व्हेन इट कम्स टू द वेडिंग सीजन, ब्राइडल लुक्स एंड ऑल दैट, check this one out, you won't regret it। This is like highly recommended from my side। The second one that I'm really liking is 68 Vela, I don't know, but yeah, again this is also a gorgeous very fairy core purpley pinky shade। Oh my
this is a two coater, like again I would say almost two coater, क्योंकि मेरे लेंथ के नेल्स पे मुझे लगता है कि मुझे 99% ओपेसिटी मिल गई, बट अगेन मैं लेयर भी कर सकती हूँ. सो दीज टू शेड्स विल बी परफेक्ट फॉर दिस वेडिंग सीजन इफ यू हैव दैट पेस्टली वाइब गोइंग ऑन फॉर यू. And with that we come to an end of today's swatch and review video, जिसमें कि मैंने तुम्हारे साथ मार्स की कॉस्मिक ह्यूज नेल पेंट रेंज के नए एडिशन में से 10 पॉलिशेस का स्वॉच एंड रिव्यू शेयर किया. First of all, thank you so much, Rhythm, for letting me know about these new editions. I love you guys for keeping me informed with all these new launches and stuff. Keep them coming, right? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना अगर तुमने ये पॉलिशेस पहले से ट्राई कर रखी है, द न्यू एडिशन वंस, तो कौन कौन सी तुमने पिक करी और तुम्हारे क्या थॉट्स है, क्या रिव्यूज है उसके बारे में. बिकॉज एज आई ऑलवेज से सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे बाकी व्यूअर्स को भी बहुत हेल्प मिलती है तुम्हारे कमेंट से. और अगर अभी तक पिक नहीं करी है तो आर यू प्लानिंग टू पिक एनी, और एनी से फिर कौन सी पिक करने की सोच रहे हो, सब कुछ मुझे नीचे कमेंट्स में बताना. और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे स्वॉचेस और रिव्यूज अच्छे लगते हैं, स्पेशली द मार्स वन, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी बता देना कि नेक्स्ट मुझे कौन सी पॉलिशेस पिक करके तुम लोग के साथ स्वॉच शेयर करना चाहिए. प्लस इस वीडियो को देना मत भूलना एक बड़ा सा थम्स अप, करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना, बिकॉज आई हैव वन अमेजिंग स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो कमिंग अप फॉर यू guys and you don't want to miss out on that. Plus do hype this video because we need more hype points, and as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.